Okay, three things we are going to learn today. What are the pre-writing skills? Okay, when you are going to start your writing skills, especially, so what you think, what are the things you have to keep in your mind? You cannot directly start the writing with the kids. For example, if you are working with playgroup, you cannot give them writing directly. You have to make their hand grip very strong before writing. So there are different activities we use for pre-writing skills. Then we come to the writing. Then learning is to use letters and sounds. What are the learning aids we use to learn letters and sounds very well? Okay, so that they can easily, the child can easily involve in that and they can learn far better than the normal practices. Then what are the differentiated activities? Now whatever the learning aids we are going to use now, those are all include at differentiated activities also, because they are different one thing we are going to learn from the different ways. So I'm going to tell you that how you are going to use your learning aids in your differentiated activities on different tables, so your every child can get benefit of working with different materials, working with different patterns, working with different um, things, working with different activities at the same time. And how it will help you, the basic purpose of this is every child should learn. Okay, some kids, maybe their understanding for learning for one thing is not okay, but with the other thing they are okay. They can learn very fast with any other activity. So that's why in pure uh, development area, especially for phonics and especially for uh, this area approach, we should have differentiated activities, even not for preschool, but for primary school also. Teachers should change her style of teaching if the kids are not understanding. She should understand that is uh, is my style working, is my teaching approach is working towards them, or otherwise I need to change my style. So in Montessori or in preschool, so we have so many activities, but for grades we never prepare activities. For grades also you need to prepare accordingly. If one thing is not working with the kids, try another thing. There are so many things on internet. If you start searching, the search is not, it's not going to end. So try to change your teaching styles also by the passage of time. Don't follow the old patterns and old styles all the time. Try to change your styles and search it for on the internet. YouTube is full of hundred thousands crores of videos where you can get according to your child. Okay? Wherever you are teaching, according to that, you will get something. So differentiated activities are very important. Let's start. Okay. Now, pre-writing skills always involve not with the writing. ऐसे नहीं है कि as soon as you start writing, so you start giving them papers and pens and pencils, or you start with scribbling or something. No, pre-writing skill always start with the practical life exercises. The one who are working with pure Montessori method or Montessori atmosphere, they knew it very well that in the classroom we first start with EPL exercises. Okay, EPL exercises are basically for having a strong grip for their hands, their fingers, their mind and hand coordination, especially. Okay, uh, they should have a very fine. Their skills should be fine. So for that purpose, we start with our EPL exercises where you use knob cylinders, because they are having strong grip for using that knob cylinders. Then you are using, if you are not having, these are the things, especially you are using if you are having Montessori apparatuses. I'm talking about apparatuses. If you're not having Montessori apparatuses, then you can, the best exercise is pegging. Pegging is the best exercise, or you can use tongs, चिमटा जिसको कहती हैं, ठीक है? Plastic tongs you can use to have different exercises. The kids will have a strong grip for tongs and cloth pin. Cloth pin means जो ये pegs होते हैं, they need very strong grip for opening and closing the peg. ठीक है? You can have baskets, a basket full of peg, and you tell the children to just put the cloth pins on the sides of the basket.
Okay, they will take out the peg from the basket and they will put on the same basket. Okay, on the same basket they are going to peg it. No need to peg it somewhere else, or you need some special thread or something like that. No need for that. But keep a small basket in the classroom with full of pegs and tell your learners to just take out the pegs from the basket and place it on the top of the basket. This thing you can do. You can use tweezers also, but tweezers here we don't get tweezers. I don't know plastic tweezers you are getting. These are for small activity, but tongs are very best. I have seen very nice small tongs on these dollar shops. They're very cheap. I think 3 or 4 set was for that 270 or 2 something. Okay, na? So you can use those tongs. You can use cotton balls. They can pick cotton balls and put on one basket. You can use different color macaronis for that. Rather than using their fingers or something with fingers, they can use tongs to hold it and put it in the other basket. So these kind of things you can use to develop actually for the skill of holding a pencil. These exercises are for holding pencil. Got it? So practical life. Yes, ma'am. These activities are used. Then later on, you can give them pencils and something else to start working with that. Okay. After that, you can also use scribbling. Okay, with the crayons. Tell them to scribble. But until or unless their hand grip is not strong, you will never give them color. Why? Because when you give them colors or pencils, whatever the grip they are having in their hands, now they used to do write like that. So first use these kind of things, use tongs, use cloth pins, use tweezers, these tiny things to hold. And you can use thread also for beading, because that also requires 2 finger movement, thumb and index finger. Okay, the movement of thumb and index finger is very important, because this is actually for the pencil holding. So you use these activities before having writing and before having even coloring also. Okay? सोने सो जाओ, वो तो सोने जाती है, बेड पे सोने. Okay. Then sensorial activities, as you know, the sensorial activities are also very important. You are having sandpaper letters. You can make sandpaper trays also for tracing with pencil. Sorry, with fingers. Okay. Again, it involves your finger touch. Finger touch is very important. This is for the development of muscles also. Okay. So sandpaper letter tracing on sandpaper letter tracing on in sand trays also, that will help you for pre-writing skills. Then geometric cabinets and insets. If you are having in your school geometric cabinets and inset, that is also very important. They can for that they need to use pencil. But with that geometric insets or cabinets, they can trace the picture. You can use the inside part also with knobbed, and the other part also, the cutting part also. Initially, you use the outside part, the wooden part, and then later you use the inside part which is having knob on it. Later they are going to put their knob with their one hand, and then they used to trace with the other hand. So these are the activities they help them for pre-writing skills. Before writing, before starting writing, you have to do one by one these all activities with them. Then next we are having art and craft activities. Cutting with scissors. Scissor using is also very important, because it gives your child's fine motor skills and very strong hand strength. I have seen kids in grades also, and they are not like They are not holding scissors. Gigi. They are not properly holding scissors. Yes, Gigi. Bilkul, they are not properly holding. See, even in grades, I've seen they are not familiar how to cut even a small paper. Okay, na? So scissors. Nowadays we are having very good scissors, na? Like the for children.
very small scissors, and they are not like cutting scissors. They are not having sharp ends. They are very normal scissors. So you can use those scissors, okay? Very friendly scissors. So you can use scissors for cutting also. You can give them random papers. You can give them line papers. You can give them shapes to cut. But at least they should start cutting with scissors on initial basis. These are before writing, okay? Not after writing. Before writing, you have to complete all these activities with your kids. Then drawing and coloring. Simple. Tell them to draw and color. Nothing to do with that. Okay, what is their drawing? What how they are coloring? Just simple. First, give them freehand drawing and freehand coloring, like scribbling and everything. Then later on, you can tell them to have a good grip on the pencil to make it fine also. Clay and Play-Doh. Play-Doh is also very important for having the fine motor skills of your, especially hand strength and everything. So Play-Doh is also very important. Let them play with Play-Doh. They can make shapes. They can make anything with Play-Doh. You can tell them to roll, pinch, shape it in different patterns. Then pre-writing exercises also include in pattern tracing. You can have, you know that tracing line patterns. We start with sleeping lines, slanting lines, straight line, curvy lines, chicken circles and all that. So you can give them those patterns also on initial basis. But after completing the first three exercises, then you are going to give them, then they might have a strong grip on the pencil. And then, okay, for initially basis, for pre-writing skills also, for tracing also, don't give them pencils. You can give them simple crayons. Use crayons in the classroom. Crayons are very easy to handle and they can easily write with the crayon. So for even initial basis on tracing patterns, give them crayons to do. Later on, they can have when they have strong grips, then they can make with pencils also. Sand tray writing, as I told before, sandpapers or sand trays. You can have sand trays and they can use their fingers to write patterns or draw patterns or write letters on the sandpapers. Language activity, metal insets also improve their language activity, writing skills. I told in next, when I'm going to show you the exercises, then I'll show you how to do with metal insets. Labeling and matching. Okay, you can do labeling and matching activities with them. You can have for enhancing their vocabulary. Okay, you can have labels on paper. If you don't have printed ones, it's okay. Just have little small papers cut out, and on one paper they are having labels. On the other hand, they're having pictures. If you cannot laminate, you can simply tape them, or you can simply wrap them in the sheet. Okay, transparent sheets. You can use like that. So you can have it for longer time. Not every time you're going to make those things. So for labeling and matching, you can use those images and words together or beginning sounds together. Then fine motor activities, I told you before, bead stringing is also very important. Okay, you can use pipe cleaners also, and you can use strings also to have beading. Okay, now lacing cards. Okay, now in Montessori, so we are having special lacing patterns on wooden. If you don't have that, you can simply make them on cards also. Put a zip on the chart paper, put make small holes, and they can move the lace in that. Okay, na? And you can also laminate it if you cannot laminate, because lamination, I'm telling you again and again, for lamination, it will long last. You don't need to make it every year. You just have to make it once, and then it will inshallah ta'ala will be beneficial for many years. Okay, na? Until or unless it get wet. अगर वो गीला हो जाता है, then it is very difficult to hold it for longer time. But if you are keeping it in a good condition, then believe me, it will work for so long. So you can make your lacing cards and all these activities on chart papers also. Then using tweezers, again, there are small tweezer, plastic tweezer, otherwise tongs are the best things. Building hand strength, squeezing, sponging, and using of Play-Doh. Squeezing sponges, give them sponges and try to tell them that from one tub or one bucket, they are going to uh, put the water, may fill the water with the fill the sponge with the water, and then on the other side they are going to squeeze it and like empty it.
ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ वाटर इज ऑल्सो you can use for that activity. ठीक है, for cleaning purpose also, but here we don't use cleaning, but you can use squeezing sponges for transferring the water from one bowl to another or one bucket to another bucket. Using of Play-Doh, again you can use Play-Doh for different exercises that also increase their hand and fingers and muscles um, uh, uh, control or coordination and development. और फिंगर पेंटिंग भी आता है मैम इसमें, मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इनहांस करने के लिए फिंगर पेंटिंग भी आता है इसमें। फिंगर पेंटिंग तब आता है जब बच्चे पेंट को अच्छे तरीके से जो है ना वो उसको यूज कर सके। ठीक है, हमारे यहाँ तो वो हाथ पकड़ के वाली फिंगर पेंटिंग होती है ना, उसका कोई फायदा नहीं है। When you यस are मैम। working with that, अगर आप बच्चे के साथ काम करें, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, इसमें टीचर का कोई रोल नहीं है। You are going to give them the things, place the things in front of them and let them explore and let them do the work. Nothing to do with the teacher. वो वाली हैंड प्रिंटिंग और फिंगर प्रिंटिंग हम इनिशियली बिल्कुल हम भी यहाँ पर ऐसे ही कराते थे। बच्चा आया, पहले दिन हैंड प्रिंटिंग करा दी, फुट प्रिंटिंग करा दी, फिंगर पेंटिंग करा दी। ठीक है, गुड, लेकिन उसमें आपकी टीचर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है। जब तक बच्चा अच्छे तरीके से पेंट को होल्ड करना, उसको यूज करना नहीं सीखता, तब तक आप उसके हाथ में पेंट नहीं देंगे। That's why nowhere paint activities involved. You can use crayons, you can use pencil colors, you can use pencils, you can use these things, but you cannot give them paint until or unless they can independently use paint. ठीक है ना, वो तो टीचर अगर करवा रही है तो वो दैट इज समथिंग एल्स, वो तो टीचर इन्वॉल्वमेंट होगी ना, उसमें बच्चे की लर्निंग क्या है। जब वो अच्छे तरीके से पेंट यस को मैम। होल्ड कर सके, then give them brushes and paint. Finger painting is also good, but give them brushes and paint. They apply paint on their hands by themselves and they put it on the paper by themselves to take a handprint or make something with finger painting and use aprons also. ठीक है ना, छोटे बच्चे भी यस गलती कर मैम। जाते हैं, लेकिन जब तक वो अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से उसको मैनेज ना कर सके ना, आपने उनको पेंट नहीं देना। एंड कीप इन माइंड दैट ऑन प्री स्कूल start them independent activities from the preschool, from the initial level. Even all these activities which I have discussed earlier, like 6, 7 activities, different activities I have discussed, these are all independent activities. Just give them the things, give them the material and let them explore with the material. You can guide them, but you cannot help them to teach. Don't support them, guide them. Guidance and supporting is two different things. यस मैम। Got it? एक्चुअली मैम बच्चे ना क्रेयॉन खाना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपने सिखाना है ना उनको कि क्रेयॉन्स खाने नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपने इनिशियली क्रेयॉन्स है ही नहीं है। 5, 6 आपकी दूसरी एक्टिविटीज है जो आपने पहले करानी है। क्रेयॉन्स तो बहुत बाद में आएंगे जब आप स्क्रिबलिंग स्टार्ट करेंगे। मेरी क्लास में बच्चा टेबल खाता है, ठीक है, ये तो टीचर का काम है ना कि उसको रोकना है, उसको देखना है। हर बच्चा नहीं खाता। You have to look after for those children. In a week, you मैम come to know that what are the kids doing in the classroom. यस मैम। मैम एक बच्चा जो काम करता है ना उसे देखते देखते मोस्टली सारे बच्चे वो ही करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरी क्लास में एक छोटे बच्चे ने ना क्रेयॉन माउथ में डाला। मुझे यही है कि क्रेयॉन में ना ग्रिप अच्छी आती है क्योंकि वो मोटा है। तो बिल्कुल कलरिंग के लिए ना तो वो एक ने मुंह में डाला तो साथ बैठा क्लासमेट जो हुआ तो बच्चों को देख के ज्यादा सीख रहे थे। उसने डाला मैं किस किस को मना करती, फिर मैंने ना उनसे क्रेयॉन रिमूव ही कर दिया। डो भी दिया नहीं तो नहीं मैम नहीं, ये आपने सिखाना है। देखिए यही तो बात है ना कि पहली चीज तो जब पहले बच्चे ने ली थी आपको तभी नोटिस करना चाहिए था। एकदम से सारे तो नहीं ले सकते ना, या एकदम से तो उसको देख के नहीं। यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हेन यू आर अटेंडिंग विद स्मॉल चिल्ड्रन। आपको बहुत अटेंटिव होना पड़ता है। योर आईज शुड बी लाइक 360। बहुत विजिलेंट होके आपको बच्चों के साथ काम करना होता है। पहले तो आपने उनको उसी टाइम पे लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको उनको उसी टाइम सिखाना चाहिए कि दिस इज नॉट द गुड वे टू यूज। आप उनको बताती कि दिस इज नॉट द सेफ्टी मेजर्स। अपनी ये उर्दू में बताएं, उर्दू में एक्सप्लेन करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। डेफिनेटली आई नो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल और उनको समझ भी नहीं आएगी। तो उनको उनकी लैंग्वेज में भी जरूर समझाएं कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी। इससे बहुत सारी दूसरी चीजें हो सकती है। आपका पेट खराब हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। बच्चे को इस चीज से डराएं। आप डॉक्टर के जा सकते हैं, आपको इंजेक्शन लग सकते हैं।
बच्चे को इन चीजों से फियर दें, ये नेचुरल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मना करना, उससे चीज ले लेना, वो आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ गुड थिंग, क्योंकि बाकी बच्चों का क्या कसूर है, द वंस हु आर वर्किंग विद crayons वेल, ठीक है ना। तो उनको समझाएं कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू। अच्छा, हम तो पहले यही करते हैं कि जब व्हेन वी आर गोइंग टू पुट एनीथिंग ऑन द टेबल ना, कोई भी एक्टिविटी, तो हम पहले ही उसकी सेफ्टी मेजर्स बता देती हैं, इफ यू डू दिस दिस विल हैपन। तो बच्चे वैसे ही नहीं करते, ठीक है ना। पहले से बता दें कि ये चीज नहीं करनी, और ये सब चीजें आपने तब देनी है जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उसकी क्लास और उस क्लास का एनवायरनमेंट और क्लास के मटेरियल्स के साथ इजीली हो जाए। फिर आपने ये सारी चीजें देनी है, पहले उसको एक्टिविटीज के थ्रू, ईपीएल्स के थ्रू, सेंसोरियल एक्टिविटीज के थ्रू ही काम कराएं क्लास में। 2-3 हफ्ते सिर्फ उसको एटमोस्फेयर के साथ नो हाउ होनी चाहिए कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज गुड फॉर मी एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज बैड फॉर मी। लेटर ऑन देन गिव देम crayons एंड पेंसिल्स। इनिशियली स्टेज पे आते साथ हमारे यहाँ यही होता है, आते साथ हमने 1 वीक रखा होता है। मैं खुद, हम लोग ये खुद करते रही है, उसमें पेंटिंग होगी, उसमें स्क्रिबलिंग होगी, कलरिंग होगी, हम पहले दिन ही बच्चे को ये दे देती हैं। जबकि यूएई में मैंने ऐसा नहीं देखा। 1 वीक, 1 वीक नहीं, 2 वीक्स दे आर जस्ट हैविंग एक्टिविटीज, मैचिंग एक्टिविटीज, बीडिंग एक्टिविटीज, सैंड एक्टिविटीज, these kind of active tugging activities, twigging activities, tongs activities, these kind of activities they are having, sorting out activities, just these activities they are doing and enjoying, nothing to do with pencil and paper and crayon, nothing to do with paper pencil, just these activities they do in first 2 weeks, nothing else. And we make a report and send to the parents that these activities your child has done today, and this is the criteria, and this was the achievement of your child while doing this activity, ठीक है। जब आप पेरेंट को एक्टिविटी कराने के बाद कोई रिपोर्ट भेजेंगे ना, तो पेरेंट को रियलाइज होगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने स्कूल में काम किया। हम बेसिकली एक्टिविटीज की रिपोर्ट बनाते ही नहीं है, हमारे पास कोई चेकलिस्ट नहीं होती एक्टिविटी की। इसलिए जो है ना, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा जी 1 हफ्ता हो गया या 2 हफ्ता हो गया स्कूल आ रहा है, ना कोई पेपर आ रहा है, ना कोई चीज आ रही है। मुझे पता है ये कंप्लेन बहुत होती है, इट्स नॉर्मल कंप्लेन। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि हम अपने स्टूडेंट की कोई रिपोर्ट भेज ही नहीं रहे होते ना घर पे। So you should have from day one, you should have activity checklist or child checklist, what he has done in the classroom. ओके मैम हमने स्टार्ट में यही करना है कि जो भी आपने सारा कुछ बताया, डो देनी है, स्क्रॉलिंग करनी है, मतलब 2 हफ्ते में हमने बच्चों को जस्ट सिर्फ ये एक्टिविटीज ही करवानी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रिंसिपल मैम ऑर्डर दे देती हैं कि आप बच्चे को पेपर दें, देखिए कितनी अच्छी है, बच्चे लिखना कितना आता है, वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब छोटा सा बच्चा, प्ले ग्रुप का बच्चा, अगर वो 1 मंथ लगा भी चुका है, तो अब उस बच्चे को क्या पता मैम पेंसिल कैसे पकड़नी है। नहीं, ये तो नहीं है बिल्कुल। आपने जब तक उसको एक्टिविटीज नहीं कराई, मैंने आपको बताया ना, इवन प्लेडो भी आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आती। प्लेडो भी आप 3rd वीक से देना स्टार्ट करते हैं। 1st एंड 2nd वीक में प्लेडो भी नहीं आता, क्योंकि वो भी बच्चा मुंह में डाल सकता है, उससे भी बच्चा किसी को हर्ट कर सकता है ना। आपने सीजर्स देनी है इनिशियल बेसिस पे, वो भी डेंजरस है। दूसरी एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व इन हैंड और स्किल्स वो होनी चाहिए। और पहले दिन से तो बच्चे को पेंसिल पकड़ाना, ये तो कहीं का रूल है ही नहीं है। आप उस बच्चे से, और स्पेशली यहाँ पर तो बच्चे आते ही 2.5-3 साल के हैं, 5 साल के बच्चे तो आते ही नहीं। यूएई में तो पूरे ओवरऑल मिडल ईस्ट में 5 इयर्स से कम बच्चा आप ले ही नहीं सकते स्कूल में। एक दिन भी रहता है ना अगर 5 इयर्स में, तो वो कभी एडमिशन नहीं करेंगे। एक दिन भी रहता है तो ये केएसडीए का रूल होता है, ये वहां की गवर्नमेंट का रूल है। 5 साल से कम बच्चा एक दिन भी है तो वो ग्रेड उसमें आ ही नहीं सकता, पहले लेवल पे आ ही नहीं सकता। और अगर वो 5 साल के, उसको कितना भी आता हो, कितना भी आता हो, वो कितना ब्रिलियंट बच्चा हो, आप उसको उसी लेवल पे रखेंगे, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे भेज ही नहीं सकते जो 6 इयर्स का लेवल है। हमारे यहाँ माशाल्लाह 2.5 साल का बच्चा स्कूल आ जाता है, और फिर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले दिन ही जो है वो बच्चा वो पूरी पीएचडी करके घर आ जाए। बिल्कुल ऐसा ही मैम। और 6 साल की बच्ची, वो मैम 1 क्लास का सिलेबस उसके लिए इतना टफ है, लेकिन उसे करवा रहे हैं, वो बेचारी चल ही नहीं सक रही, नहीं कवर करती, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं इसमें कसूर हमारे पेरेंट्स
और स्कूल का भी कसूर है, पैसे लेने की खातिर आजकल 2.5-3 साल के बच्चे जो है वो स्कूल में, हम लोगों ने अपने कोई भी बच्चा जो है वो 5 साल से पहले स्कूल में नहीं डाला। होना ही नहीं चाहिए, ये रूल होना ही नहीं चाहिए। 5 साल से पहले बच्चा स्कूल जाए क्यों? लेकिन हम सब भी ऐसे है ना, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो भी अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, बस ये घर में बहुत तंग करता है जी, जाए स्कूल, अच्छा स्कूल जाए। पेरेंट्स एफर्ट भी पुटिंग करते हैं ना, सारा मसला ये भी है। एज अ पेरेंट भी और एज ए मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट को भी स्ट्रिक्ट रूल्स रखने चाहिए कि जब तक बच्चे को स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपने माहौल की, वो कैसे स्कूल में आके बैठ सकता है, वो कैसे एडजस्ट कर सकता है वहां पे। लेकिन ये है कि आप लोग अपने तरीके से जरूर क्लासेस में कोशिश करें, बेशक आपका एक सेट पैटर्न आपको मिल भी जाए कि दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू डू इन द क्लासरूम, पर प्लीज देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर चीज मैनेजमेंट करती है, टीचर्स की तरफ से भी आउटपुट होना चाहिए, टीचर्स को भी बोलना चाहिए, टीचर्स को भी बताना चाहिए। जब डेफिनेटली वो आपसे फर्स्ट वीक या 2 वीक्स की एक्टिविटीज मांगती है, तो आप उनमें इन एक्टिविटीज को ऐड करें। कोई आपसे नहीं कहेगा कि आपने ये एक्टिविटीज क्यों ऐड की है। टेल देम, गिव देम रीजंस व्हाई यू आर एडिंग दीज एक्टिविटीज, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, जब आप रीजनिंग के साथ काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको काम करने से रोकेगा। हर कोई अच्छी चीज चाहता है, अपने स्कूल के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए हर चीज का। ठीक है ना? तो जब आप लोग भी इनिशिएटिव लेंगे और रीजनिंग देंगे, तो आई डोंट थिंक सो नोबडी विल स्टॉप यू फॉर डूइंग एनी गुड थिंग। हाँ, ये होता है कि जो सेट होती है हम फिर उसी को लेके चलती है, ना हम आर्ग्यू करती हैं, ना वो हमें इजाजत देते हैं, तो उस तरह मुश्किल हो जाता है, फिर मुश्किल है कि आप लोग ये चीजें करें। लेकिन दीज आर द थिंग्स विच आर बेसिकली, दीज आर प्योरली फ्रॉम मॉन्टेसरी। अगर आप मॉन्टेसरी सेटअप में काम करिए, मॉन्टेसरी क्या, प्री स्कूल कहीं पर भी है ना, उसका यही इन्वॉल्वमेंट है, प्री स्कूल में ऐसे ही काम होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। फिर आपकी जी मैम। ठीक है ना, बिल्डिंग हैंड स्ट्रेंथ आ गई, स्क्वीजिंग स्पॉन्जेस और यूजिंग प्लेडो से। अब देखिए, यूजिंग प्लेडो बहुत बाद में आती है, आपकी तकरीबन तकरीबन 3rd वीक से स्टार्ट होती है प्लेडो, अगर आप देना चाहती हैं तो 3rd और 4th वीक से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज, थ्रेडिंग एंड स्विंगिंग, वही मैंने बताया, आप उनको थ्रेडिंग से थ्रेड्स दे सकती हैं, क्या कहती हैं, बीड्स दे सकती हैं। बेसिकली हम नीडल्स तो दे नहीं सकते, आई डोंट एग्री विद नीडल्स, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे होती हैं और वो इसको अटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप उनको थ्रेडिंग तो नहीं, वो बीडिंग आप उनको दे सकते हैं बाय यूजिंग थ्रेड। ठीक है, उसमें आप ये है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप जो थ्रेड की मेजरमेंट है ना, उसको आप कम कर सकती हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें आप कर सकती हैं। पजल्स एंड पैक बोर्ड्स, और डिफरेंट पजल्स दें, पैकिंग बोर्ड्स दें। ठीक है, ये उनकी जो है वो हैंड मूवमेंट्स और स्पेशल अवेयरनेस के लिए होता है। ठीक है, जो स्पेशल मूवमेंट्स होती है ना, वेरी फाइन मूवमेंट्स, उनको इंक्रीज करते हैं और उनको डेवलप करते हैं बच्चे के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स मैम यू आर एक गोइंग। क्वेश्चन था। ये डेली बेस पे हम एक दो एक्टिविटी रखें बच्चों को, जैसे हम पढ़ा रहे हैं कुछ करवा रहे हैं तो डेली बेस पे एक्टिविटी, मेरी कोऑर्डिनेटर तो ये कहती है कि डेली बेस पे एक दो एक्टिविटी रखें। देखिए, अगर आप तो प्योर मोंटेसरी उसमें काम कर रहे हैं ना, तो देखिए मोंटेसरी प्ले में ग्रुप है जी। प्ले ग्रुप है ना, नहीं प्ले जी ग्रुप जी में आप किस चीज को फॉलो करती हैं, मोंटेसरी को फॉलो करती हैं कि नहीं, सिंपल प्ले ग्रुप है। मैम, मैं स्मार्ट स्कूल में हूँ, द स्मार्ट स्कूल जो है, तो वहां से उनके अपनी एक्टिविटी के वो लिखे हुए आते हैं, उसमें दिए हुए पेजेस, उनके मतलब डीएलपीस जो होती है उसमें लिखी हुई होती है, तो उनमें हमारी कोऑर्डिनेटर कहती है कि वीकली एक दो एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होती है। तो उसमें मैं पूछ रही थी कि ये करवा सकते हैं डेली बेस पे इनमें से कोई भी? बिल्कुल करवाएं, ये है ही डेली बेस्ड एक्टिविटीज, प्री राइटिंग स्किल्स है, डेली बेस्ड एक्टिविटीज है ये। बच्चे को देखिए, आप बच्चे को काम किस तरह, अब आपके पास प्ले ग्रुप का ग्रुप है, ठीक है, कितने टेबल्स बनते हैं जी आपके जी। पास क्लास में? सॉरी मैंने कहा कितने टेबल्स हैं आपके पास क्लास में? मैम, 4 टेबल्स हैं। 4 टेबल्स है, कितनी टीचर्स हैं क्लास में? मैं और एक हेल्पर हैं, लेकिन अभी स्ट्रेंथ कम है, 10-11 बच्चे हैं अभी तो। चलिए 10-11 बच्ची हैं, फर्ज करें आपके पास 10-11 बच्ची हैं, एक टेबल पे आप राइटिंग करवा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि हेल्पर राइटिंग करा सकती है, और हेल्पर को राइटिंग करानी चाहिए। राइटिंग का काम जो है वो सिर्फ टीचर का होना चाहिए। ठीक है,
अब एक टेबल पे आप बच्चे को राइटिंग करा रही हैं, आपने 4-5 बच्चे अपने साथ बिठाए हुए, आप उनको राइटिंग करा रही हैं, एक टाइम पे आप एक ही बच्चा अटेंड कर रही है ना, यस मैम। ठीक है ना, ऐसा ही है ना, एक टाइम पे आपके जी पास जी। एक ही बच्चा है। अब आपने क्या करना है, जो एक बच्चा आपके पास है, या चलिए आपके लेफ्ट साइड पे एक बच्चा है, एक साइड पे आपके राइट बच्चा है, इतने तो हम टीचर्स हो ही जाती हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम कि हम 2 बच्चों को भी हैंडल कर सकते हैं। जो बाकी बच्चे हैं यस ना, मैम। वो क्या कर रही हैं, वो आइडल बैठे हैं ना, या उनके आगे जी। पेपर पेंसिल पड़ी होगी। अब उनको आपने छोटी छोटी एक्टिविटीज दे देनी है, ठीक है। ओके मीनवाइल वो जी। अपनी एक्टिविटीज के साथ काम करें। अब जो आपकी टीए के पास टेबल है, या आपकी जो असिस्टेंट टीचर आपके साथ हेल्पर है क्लास में, जो उसके पास टेबल है, उसको आप एक ग्रुप एक्टिविटी दें। आप उसको कहीं स्पॉन्जिंग करा दो, आप उसको कहीं स्क्रिबलिंग करा दो, आप उसको कहीं बीडिंग करा दो, पेगिंग करा दो। छोटी छोटी बास्केट्स अपनी क्लास में ला के रखें, पेग्स ला के रखें, वो उधर वहां पे बैठ के उन बच्चों के साथ वो एक्टिविटी कर ले, ठीक है। इस तरह से होगा कि सही। शिफ्टिंग होती हो जाएगी, 2 बच्चे ने पढ़ लिया, आपके पास राइटिंग का काम कंप्लीट हो गया, आपने उन बच्चों को उस टेबल पे भेज दिया, वहां से 2 बच्चे और अपने पास बुला लिए, ठीक है ना। तो उस तरह ये होगा कि ठीक। chaos भी नहीं होगा क्लास में, सारे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में लगी रहेगी। आपका कोई भी बच्चा आइडल नहीं बैठेगा। जब बच्चा आइडल बैठता है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है क्लास के लिए, सबसे ज्यादा कल्प्रेट वो होता है। ओके मैम। मैम ये पिंक टावर एक्टिविटी किस इसमें आती है? ये आपकी सेंसोरियल में आती है, आप ये भी करा सकती हैं। मैं तो वो चीजें बता रही हूँ कि अगर आपके पास मॉन्टेसरी अपरेटसेस नहीं है, अगर आपके पास मॉन्टेसरी अपरेटसेस हैं क्लास में, फिर तो बहुत एक्टिविटीज हैं, यस मैम। ठीक है ना। हर बच्चे को इंगेज रखें। अगर आपके पास कारपेट है, आप बच्चे को एक्टिविटी देके कारपेट पे बिठा दें। मैंने आपको बताया ना कि उन एक्टिविटीज के लिए टीचर को साथ बैठना जरूरी नहीं है, दे शुड नो हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स एंड हाउ टू प्लेस देम बैक ऑल्सो। एक दफा नहीं माल ओके। सुनेगा, दूसरी दफा नहीं सुनेगा, तीसरी दफा नहीं सुनेगा, चौथी दफा जरूर सुनेगा। पर क्लास का एनवायरनमेंट तो ऐसा होता है कि बच्चा टीचर की बात ज्यादा सुनता है। अगर आप उसको कहेंगे कि आपने खुद मटेरियल लेके आना है और आपने खुद मटेरियल अपनी वापस जगह पे रखना है, तो वो बहुत खुश होकर रखेगा। जब उसको आप फ्री हैंड देंगी क्लास में कि हाँ मैं अपनी मर्जी से एक चीज क्लास की चीज है वो मैं खुद उठा रहा हूँ, मैं खुद लेके आ रहा हूँ, मैं उसके साथ खुद खेल रहा हूँ, खुद उसको वापस रख रहा हूँ, वो उसको ज्यादा इंजॉय करेगा, रादर देन कि आप उसके सामने रखें और आप ही उठा के लेके जाए। वो एक क्यूरियोसिटी लेवल उस बच्चे के अंदर रह जाता है कि व्हाई आई कांट डू दिस ऑल थिंग्स, जैसे वो घर में करता है, ठीक है ना। तो आप जितनी भी ठीक है, थैंक यू मैम। एक्टिविटीज है मॉन्टेसरी की, उसमें ईपीएल एक्टिविटीज आ जाती है, सेंसोरियल आ जाती है, न्यूमरेसी में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है। अगर आपके पास है अप्रेंटिसेस, आपके पास कौन कौन सा अप्रेंटिस है क्लास में, अगर है भी तो? मैम पिंक टावर है, और मतलब इस तरह के थोड़े थोड़े से हैं, जैसे वो हो गया ज्योमेट्रिकल वाले हैं, जी और जी। वो बीड्स के हैं, और वो लैपटॉप वाले जो होते हैं कलर्स के, आई थिंक वो हैं। हाँ हाँ बेशक। बाकी हमने हाँ स्पंजिंग कलरिंग, करवाती अगर है। बिल्कुल कलरिंग बोर्ड्स है अगर आपके पास, तो वो भी एक एक्टिविटी है, बच्चे को कलर लर्न करवाए। आपकी जो असिस्टेंट टीचर है वो एक टेबल पे बैठ के बच्चे को 3 कलर्स 3 पीरियड लेसन के साथ करवाए। अच्छा खासा टाइम लगता है उसे, तब तक आप उस एक टेबल को काम करवा लेंगे और साथ साथ वो दूसरी एक्टिविटीज भी करता रहेगा। मैम कलर डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन ना बच्चे फिर वही पहन के आते हैं, और मतलब हर तरफ हम उसी कलर का वो करते हैं। नहीं नहीं, वो तो कलर डे होता है ना, वो दैट इज समथिंग एल्स, दैट इज एन एक्टिविटी, वो तो एक और एक्टिविटी है। लेकिन आपके पास कलर बोर्ड्स होंगे मॉन्टेसरी में ना, कलर बोर्ड्स होती हैं, छोटे छोटे बोर्ड्स होती हैं ग्रीन कलर बोर्ड की, है इसमें। कलर टैबलेट्स। कलर टैबलेट्स, यस, कलर टैबलेट्स वो यस होती है ना। मैम। आप उसके थ्रू एक्टिविटीज कराएं, वो 3 कलर सेलेक्ट करके आप 3 पीरियड लेसन के साथ उन कलर्स को, यूजुअली 2 कलर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, और आप उसको 3 पीरियड लेसन के साथ बच्चे को वो करवाएं। नहीं है तो ठीक कुछ है, सारे थैंक यू कलर मैम चार्ट, जी। कोई मुश्किल नहीं है। चार्ट पेपर्स, हर कलर का चार्ट पेपर मिलता है। आपने इनिशियल बेसिक कलर्स ही रखने होते हैं, प्राइमरी कलर्स एंड बेसिक कलर्स होती है, आपके न्यूट्रल कलर्स उसमें आते हैं। आप वो रखिए, छोटे छोटे कार्ड्स बनाए, कटआउट्स बनाए उनके, उनको लेमिनेट कर लें, टेप कर लें, कुछ भी कर लें उनको सेव करने के लिए, और वो आप यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि आप क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर सकती हैं इसमें, ठीक है। और ये ठीक है एक्टिविटीज मैम। सारी खुद बनाने वाली है, मैंने क्यों सिलेक्ट की है वो एक्टिविटीज, कि जो आप खुद बना सकें, जिसमें आपको ना तो स्कूल वालों को कहना पड़े कि वी नीड ऑल दीज मटेरियल्स, और ना ही कोई एक्स्ट्रा बजट आपको इंक्रीज करना पड़े अपना भी। और ये एक्टिविटीज, जब आप एक बात याद रखिएगा, एक टीचर जो अपनी इन्वेस्टमेंट लगाती है ना, वो उसकी अपनी की इन्वेस्टमेंट होती है, और वो आपको ही फायदा देगी। अगर वो ज्यादा
अगर आप उसको सिक्योर रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा टाइम के लिए चलेगी। जरूरी तो नहीं कि आप जिस स्कूल में बैठे हैं सारी जिंदगी उधर ही बैठे रहेंगे। जब आप मूव करें आप अपनी चीज लेके जाएं। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपका एसेट है। समझ आ रही है आपको बात? ये आप लोगों का यस अपना एसेट है। आप अपने खुद से फ्लैश कार्ड्स बनाएं, अपने ऊपर टाइम लगाएं, थोड़ा सा पैसा लगाएं, खुद से फ्लैश कार्ड्स बनाएं और उनको लेमिनेट करा के अपने पास रखें। आप कहीं जाएंगे भी डेमो देने के लिए अपने फ्लैश कार्ड्स लेके जाएंगे तो वो इन चीजों को देख के बहुत अपील करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें जो है ना वो बहुत जरूरी है। ये आपके अपना एसेट है, ये किसी का एसेट नहीं है, ये स्कूल का एसेट नहीं है, ये आपके अपने लिए है। मैम एक क्वेश्चन ये भी था कि एक क्लास में एक टीचर के पास कितने बच्चे होने चाहिए मैक्सिमम? 6 एक टाइम पे 6 बच्चों को एंटरटेन कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। उसमें से भी राइटिंग वाले जो हैं, अगर तो इनिशियल राइटिंग है जैसे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं तो वो तो सिर्फ 2 बच्चे राइटिंग करेंगे, 2 या 1 बच्चा जिसको आपने फुल टाइम देना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। और अगर राइटिंग वाले बच्चे अच्छे हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं तो आप 6 बच्चे आराम से लेके एक टेबल पे बैठ सकती है, जिनमें से बाकी 3-4 को आप बुक्स दे दें और साथ साथ आप उनको, अगर जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी सपोर्ट और गाइडेंस की, उसको आप अपने साथ बिठा लें। जिनको नहीं है तो उनको आप सामने अपने टेबल पे ही अपने सामने बिठाएं और आप उनको लुक आफ्टर कर सकती है। 6 से ज्यादा बच्चे आप एक टाइम पे नहीं ले सकते। ठीक है? ठीक है Yes, मैम। ma'am. ओके। नाउ लिटरेसी प्रिपरेशन में अल्फाबेट कार्ड्स एंड ट्रेसिंग वही आ जाते हैं। स्टोरी टाइम एंड डिस्कशन जब आप लिटरेसी स्टार्ट करती हैं तो फिर आपने अल्फाबेट कार्ड्स पे लेके आना है, ट्रेसिंग पे लेके आना है, लेटर ट्रेसिंग होगी, फिंगर ट्रेसिंग होगी, पेंसिल अपने बच्चों को देना शुरू करनी है, फिर लेटर शेप्स और साउंड्स को रिकग्निशन आ जाएगी, रीइंफोर्समेंट आ जाएगी, फिर स्टोरी टाइम आ जाएगी, डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी। ये बात की बातें हैं। ठीक है, पहले आपने प्री राइटिंग स्किल्स में अपने बच्चों को सिर्फ एक्टिविटीज करानी है और उनकी हैंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जो होनी चाहिए ना वो बहुत मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन एक्टिविटीज को कराने के बाद राइटिंग विल बिकम सो इजी फॉर यू ऑल। इनिशियली अगर आप बच्चे को पेंसिल देके कहेंगे सही तरह पेंसिल पकड़ो, इस तरह पेंसिल पकड़ो, उस तरह, वो कभी भी नहीं सीखेगा। पेंसिल पकड़ाना आपको जो सिखानी है, जो पेंसिल ग्रिप है, जो हैंड ग्रिप होनी चाहिए, वो आएगी आपकी एक्टिविटी के साथ। मैंने आपको बताया ना बेस्ट एक्टिविटी है टोंग्स को यूज करना और पैक्स को यूज करना और बीडिंग करना। इससे बेहतरीन एक्टिविटी कोई नहीं है। फुल हैंड ग्रिप चाहिए तो स्पॉन्जिंग कराएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे को स्पॉन्जिंग कराएं, उससे उसके मसल्स डेवलप होती हैं। क्योंकि जब आपके पास आते हैं जहरी बात, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हैंड्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनके मसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने ये कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेक्शन करवानी है उनके हैंड्स की। जब ये होना शुरू हो जाएगी तो उनके मसल्स खुद ब खुद डेवलप होने लग जाएंगे और पेंसिल पे एक अच्छी ग्रिप आएगी उनकी। जी कुछ कह रहे हैं? मैम इससे यस मैम, पेंसिल ग्रिप के लिए ना एक एक्टिविटी हम जो मैंने अपनी पर्सनल उसमें देखा एक्सपीरियंस में बहुत अच्छी है, वो ड्रॉपर की है। हाँ, ड्रॉपर। ड्रॉपर को एग्जैक्टली। ड्रॉपर बहुत बेस्ट है। वो उससे बच्चों को पेंसिल ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि कितनी फिंगर्स हमने यूज करनी है, और फिर वो जब प्रेस करते हैं तो हैंड ग्रिप भी बहुत अच्छी आ जाती है। बिल्कुल और वो अगर बिल्कुल। जिस तरह हमारे पास एक्टिविटीज बहुत सारी, मतलब हम राइटिंग करवा रहे हैं, वो बच्चे ड्रॉपर से खुद खेलते भी रहते हैं, बिजी भी रहते हैं, और इंडायरेक्टली वो जो है ना पेंसिल के ग्रिप के लिए भी तैयार हो रहे होते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ड्रॉपर्स ना जब तक उनको अच्छा हैंड वाटर यूज करना ना आए ना तो ड्रॉपर देना ना थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे मेसी बहुत करते हैं, मेस बहुत क्रिएट करते हैं ना ड्रॉपर्स के साथ। तो वो यही है कि ड्रॉपर की जो एक्टिविटी है वो लेटर ऑन स्टेज पे इसलिए आती है क्योंकि उनको जरा थोड़ा नो होना चाहिए कि उन्होंने वाटर को कैसे यूज करना है। जब स्पॉन्जिंग आप कराना शुरू करिए आप ड्रॉपर्स के साथ भी करें तो बेस्ट एक्टिविटी ड्रॉपर के साथ भी है, पिपेट्स को यूज करके। आप बड़े बड़े पिपेट्स रख लें, छोटे छोटे ना रखें, लंबे लंबे बड़े बड़े पिपेट्स रखें और उससे बच्चे को जो बिल्कुल परफेक्ट हैंड ग्रिप आती है। फिंगर फिंगर होल्डिंग, ये सॉरी पेंसिल होल्डिंग का पता चलता है कि हाउ टू बेसिकली होल्ड अ पेंसिल एंड हाउ मेनी फिंगर्स वी यूज टू होल्ड अ पेंसिल। बिल्कुल। ओके जी। मैम मैं एक बात बताऊं, जी जी। ये जो मेरा प्ले ग्रुप है वो 3 साल का है, स्पॉन्जिन और ये जो सीजर पकड़ते हैं क्राफ्टिंग वगैरह कराने के लिए प्ले ग्रुप में,
इनके फाइन मोटर्स को इन्हांस करने के लिए। लेकिन ये मेरा बच्चा जो है सीजर सही से पकड़ता ही नहीं है, ना ही कटिंग करता है, और दूसरे स्पॉन्जिंग करते वो एक बकेट से दूसरे वो बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन वो जो है ना हरूफ तहजी और जो ये फोनिक्स वगैरह है वो सारे AB ए से लेके जी तक सारे के सारे ट्रेसिंग करता है, जॉइनिंग सब कुछ करता है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहती हैं मैम कि इस ये जो है इस तरह के कर सकता है राइटिंग, लेकिन वो चीज एक्टिविटीज नहीं करता? शमीला आप क्या कह रही है? एक्टिविटीज नहीं करता, बाकी राइटिंग वगैरह करते हैं बच्चा? सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या कह रही हैं? राइटिंग नहीं करता, बाकी करते हैं? राइटिंग करते हैं, बाकी एक्टिविटीज नहीं करता? सॉरी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, दोबारा आवाज आए तो मुझे जरूर प्लीज बताइएगा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। Okay, allow children to use activities they are interested in which foster motivation and engagement. अभी ये वही बात आ गई है कि अगर आपकी बात जितनी मुझे समझ आई थी, आप कह रही थी कि राइटिंग वगैरह तो करता है लेकिन एक्टिविटीज नहीं करता। तो बच्चे की समटाइम्स जो है वो लेट देम चूज देयर एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ। ठीक है, वो जिसमें इंटरेस्टेड होगा वो वही करेगा, जिसको वो इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंटली करे। अगर वो किसी चीज में इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको वो एक्टिविटीज कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग। आपने बच्चे को वही एक्टिविटीज करानी है, वही चीजें करानी है जिसको वो इंटरेस्ट लेके करे, जिसको वो अपने इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में करे, कॉन्फिडेंटली करे, और जिससे वो बच्चा कुछ सीखे भी। ठीक है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। तो लर्निंग अगर उसकी नहीं हो रही, इफ ही इज नॉट लर्निंग, इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द एनवायरनमेंट, इफ इज नॉट कंफर्टेबल विद द एक्टिविटी ही इज डूइंग, देन डोंट लेट द चाइल्ड टू डू। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड, इट्स ओके, लेट इट बी लाइक दैट। कोई जरूरत नहीं उसको कराने की, थोड़ी देर से बाद वो खुद अपने उस स्पेस में आ जाएगा और वो करने लग जाएगा। लेकिन लेट द चाइल्ड टू बी इन्वॉल्व इन दी एटमोसफियर इन योर क्लास प्रेमिसेस। ठीक है ना, इन्वॉल्व इन दैट सिनेरियो फर्स्ट। जब तक बच्चा आपकी उस क्लास में इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि आप उसको फोर्स करके कोई चीज करवाएं, और करवाना भी नहीं चाहिए। छोटे बच्चे को फोर्स करके कुछ भी ना करवाएं। लेट देम इंडिपेंडेंटली डू, लेट देम कॉन्फिडेंटली डू, let them do their work according to their interest. I know it is a burden for the teacher also, because she has to give report by the end of the day or end of the week that what the child has done, and parents will definitely ask, management will also ask, but still let the child explore. अगर वो नहीं एक्टिविटीज कर रहा तो let it be like that. ठीक है, बट एटलीस्ट आपके पास कोई रिपोर्ट होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, या कोई चेकलिस्ट होनी चाहिए जहां पर आप बता सके, या फिर आप खुद से ही एक छोटी सी जो है वो अपने पास डायरी रखिए अपने उस बच्चे का एटीट्यूड नोट करने के लिए, और जरूर बताएं पेरेंट्स को कि उसकी इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है, या मैनेजमेंट को, बाय आफ्टर 1 वीक। अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में कंटिन्यूसली ही इज डूइंग द सेम बिहेवियर, तो डू डिस्कस इट विद योर पीयर्स। ठीक है, मस्ट डिस्कस करेंगे, मत सोचिए कि उसमें टीचर का कोई फ्लॉज होगा, या जब बाकी 20 बच्चे काम करें एक बच्चा काम नहीं करा, तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग विद द चाइल्ड, देयर इज नथिंग टू डू विद द टीचर। ठीक है, वो फिर उसको और तरीके से डेफिनेटली, अब यहाँ पे तो इंक्लूजन डिपार्टमेंट्स नहीं होते, अदरवाइज हमारे यहाँ तो ये रिपोर्ट्स जो है वो इंक्लूजन डिपार्टमेंट में जाती हैं, और वो फिर हमें बताते हैं कि हाउ टू फर्दर वर्क विद दैट चाइल्ड। लेकिन आप लोग खुद भी मैनेजमेंट से डिस्कस करके, पीर से डिस्कस करके, अपने फेलो टीचर से डिस्कस करके आप देख सकते हैं कि उसके लिए क्या एनी अदर अल्टरनेटिव वे आप यूज कर सकें। All right, till now everything is clear. Does anyone want to ask me something? Then I'll move to the next one. We'll move to the learning aid. जी बेटा, वॉमिटिंग आई है, वॉमिटिंग आई है, और वॉमिटिंग कर रही है, नहीं है? Got it, everyone? Should I move to the next slide? Class, can you hear me? Yes ma'am, yes ma'am, ठीक है, yes ma'am. ओके जी। नाउ लर्निंग एड्स यूज्ड फॉर लेटर्स एंड साउंड्स।
अच्छा, these learning aids are having differentiated activities among them also. ठीक है, वही बात आ जाती है, एक टेबल पर अगर आप अपने बच्चे को सैंड पेपर लेटर के साथ करा रहे हैं, तो दूसरे टेबल पे आप बच्चे को मेटल इंसेक्ट्स के साथ करवाएं, तीसरे टेबल पे शेप्स और सॉरी साउंड्स और पिक्चर्स की मैचिंग करवाएं। ठीक है, तो these are all when all 2-3 activities are working together for one letter or one sound, so these are called differentiated activities. ठीक है, यूजिंग सैंड पेपर लेटर ऑल्सो, मूवेबल अल्फाबेट ऑल्सो, और कोई और एक्टिविटी ऑल्सो, मैचिंग विद पिक्चर्स एंड साउंड्स ऑल्सो, वो सारी आपकी डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज में आ जाती है, कंपेयरिंग टू दी चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपके बच्चे की जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उसके हिसाब से इसको करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ फर्स्ट एक्टिविटी है, ये सैंड पेपर लेटर की एक्टिविटी है। आई थिंक मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद सैंड पेपर लेटर्स। आपके पास हरूफ तहजी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, और नंबर्स में भी होती है। तो सैंड पेपर एक्टिविटीज जो है विच आर वेरी, आपको बुखार है क्यों? ठीक है, सैंड पेपर लेटर्स आप में जो है वो एक टेबल पे आपने सैंड पेपर लेटर्स के साथ, अच्छा सैंड पेपर लेटर्स आप खुद भी बना सकती हैं। ये बेसिकली सैंड पेपर्स होती हैं, आपको इजीली हार्डवेयर की शॉप्स में मिल जाती है। मैंने अपने सैंड पेपर लेटर्स खुद बनाए थे। ठीक है, जिसको रेगमार नहीं कहते, उसमें फाइन क्वालिटी के पेपर्स भी होती हैं। आप उनसे मांग लीजिए कि आपको बहुत फाइन क्वालिटी का सैंड पेपर चाहिए, हार्डवेयर शॉप में इजीली मिल जाती है। उस टाइम पे 50 रुपीज की एक शीट थी, और उसमें से आराम से 4 अल्फाबेट्स निकल आते थे, बड़े बड़े। ठीक है, ये नहीं कि छोटे छोटे साइज के, बड़े बड़े कार्ड्स के, जितना ये तकरीबन 6x6 का कार्ड होता है, उतना बना के आप सैंड पेपर लेटर्स खुद भी बना सकती है। इट्स इज वेरी इजी। ठीक है, देन विल कम टू मूवेबल अल्फाबेट्स। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा मूवेबल अल्फाबेट वाला बॉक्स नहीं है, वैसे तो दिस बॉक्स इज वेरी चीप, आप अपने स्कूल को कहीं ले लें, ये 3600 का बॉक्स है। ये पीएमसी वाले के पास भी है, पीएमसी वाले भी सप्लाई करते हैं ये बॉक्स। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन डू द कटिंग, राइट द लेटर्स ऑन एंड प्रिंट देम, लाइक जो आपके ब्लू लेटर्स हैं वो आप प्रिंट करवा ले ब्लू पेज के ऊपर, और आपके जो रेड लेटर्स हैं वो आप प्रिंट करवा ले रेड पेज के ऊपर, ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है ना, लेकिन पेजेस कलर जो है वो रेड एंड ब्लू होने चाहिए पेजेस का। उसके बाद आप उसको लेमिनेट कराएं, टेप करें, और उनको जो छोटे छोटे कटआउट्स में काट लें। दैट ऑल्सो बिकम योर मूवेबल अल्फाबेट्स। ठीक है, एक एक लेटर की आप 6-6 7-7 प्रिंट्स छोटे छोटे एक ही पेज के ऊपर, मेरे पास शायद की पड़ा हो तो मैं आपको दिखाऊं, कि वो आप बना सकते हैं, छोटे छोटे कार्ड्स बना लें, और वो ये है कि वो आप एज अ मूवेबल अल्फाबेट यूज कर सकती हैं। फिर आपकी आ जाती है साउंड बॉक्सेस। साउंड बॉक्सेस आर व्हाट बेसिकली, दे आर बॉक्सेस विच इज हैविंग मटेरियल objects with different sounds. The bachche are going to take out those objects, or they can match with the sound. If you are not having objects, अगर आपके पास objects नहीं है, तो you can use picture cards also with that. अच्छा, this is metal insects. ठीक है, ये है मेटल इंसेक्ट्स। अब मेटल इंसेक्ट्स में भी ये नॉब्ड वाले होते हैं, और ये बॉक्स जो होता है, जो उसका आउटर पे उसकी होती है, आउटसाइड होती है। दोनों को यूज करते हुए आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कर सकते हैं। पहले हम जो करते हैं वो वुडन पार्ट को करते हैं, नॉब्ड वाले को नहीं, क्योंकि इस वुडन पार्ट की ट्रेसिंग करना बहुत ईजी होता है, इस वुडन पार्ट की ट्रेसिंग करना। फिर बाद में जब बच्चों की ग्रिप अच्छी आ जाती है, फिर हम उनको नॉब्ड पार्ट देते हैं, और फिर वो आउटर ट्रेसिंग करते हैं नॉब्ड पार्ट से। जी बेटा, बिल्कुल आपने वोमिटिंग करनी है, बताओ ना फिर क्या हो रहा है। क्लास जस्ट गिव मी सेकंड, जस्ट गिव मी 2 minutes।
ऑलराइट जी, ठीक है। मेटल इंसर्ट्स 4 चीजें मैंने आपको बताई है, सैंड पेपर लेटर्स, मूवेबल अल्फाबेट, साउंड बॉक्सेस, मेटल इंसर्ट्स, ठीक है। These are can use as differentiated activities and learning aids and sounds. Next activities are phonetic object boxes. Again, these are boxes with words. ठीक है, पहले हमारे पास sounds के साथ images थी, वो beginning sounds के साथ तो आप कोई भी image ले सकती हैं, लेकिन when you come to 3-letter words और CVC words तो फिर आपको typically particularly आपको 3-letter words, आपको phonetic ऑब्जेक्ट बॉक्सेस होती हैं, उसमें आपके पास वोकैबुलरी होती है और उन्हीं चीजों की इमेजेस होती हैं या पिक्चर्स होती हैं, या फिर उन्हीं चीजों की सॉलिड पिक इमेजेस होती हैं, सॉलिड मटेरियल होगा आपके पास। एक सेकेंड। ओके, तो दीज आर फोनेटिक बॉक्सेस। अब इसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि आपके पास सीवीसी वर्ड्स हो, आप सीवीसी वर्ड्स के साथ पिक्चर्स को मैच कर सकती हैं, कलर्ड पिक्चर्स आप प्रिंट आउट कर लें और उसके साथ आप जो है वो वोकैबुलरी भी हो जाएगी और उनकी इमेजेस भी साथ होंगी। जब तक आप बच्चे को इमेजेस नहीं दिखाते या रियल लाइफ ऑब्जेक्ट नहीं दिखाते, आपने बच्चे को हाफ ऑफ द लर्निंग दी है, ठीक है। तो इट इज मस्ट टू हैव when you are introducing sounds, when you're introducing letters, words, whatever you are introducing, please keep pictures with them, ठीक है। पिक्चर्स जरूर होनी चाहिए। सैंड ट्रेस, सेंसरी बेस लेटर फॉर्मेशन, ठीक है। आप सैंड ट्रेस खुद भी बना सकती हैं, फाइन सैंड मिल जाती है बाजार से, उनको ट्रेस में रख के आप रख सकती हैं। अच्छा, उसके साथ आप जो आपकी ये स्क्यूर्स होती हैं, इन स्क्यूर्स को रख सकती हैं, उसके साथ भी ट्रेसिंग कर सकती हैं, फिंगर के साथ भी ट्रेसिंग कर सकती हैं, ठीक है। तो सैंड ट्रेस भी आप खुद से बना सकती हैं, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। फाइन सैंड बाजार से मिलती है, आप वो डिफरेंट ट्रेस में छोटी छोटी ट्रेस ले लें ताकि आपके पास एक टेबल पे 4 और 5 ट्रेस भी इजीली आ जाए। बड़ी ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे जो है वो उसके अंदर ही लेटर्स लिख सकते हैं। जिन बच्चों को जो बच्चे आपको जरा थोड़ा राइटिंग में टफ टाइम दे रहे हैं, सैंड ट्रेस आर बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर देम, और दैट सैंड पेपर लेटर्स, बोथ आर वेरी गुड एक्सरसाइजेस फॉर देम। सो आप उनको ये दोनों एक्सरसाइजेस दे सकते हैं अपने सामने ही टेबल के ऊपर, और इंडिपेंडेंटली भी वो मैट बिछा के ये काम कर सकते हैं। देन अल्फाबेट पजल बोर्ड्स, देयर आर डिफरेंट अल्फाबेट पजल बोर्ड, इस तरह के भी होते हैं। दूसरी आजकल रैंडम जो मार्केट में आई हुई है, छोटे छोटे बॉक्सेस होती हैं, उनके ऊपर अल्फाबेट्स लगे हुए होती है और वो रिमूव भी हो जाती है और आप उनको दोबारा से वहां पर लगा देती हैं, वो वाले भी हो सकती हैं। इस तरह का भी आप अल्फाबेट बॉक्स कोई बना सकती हैं, अल्फाबेट चार्ट बना सकते हैं, अल्फाबेट बोर्ड बना ले जहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई और रेंडमली अल्फाबेट पड़े हुए हों और बच्चे जो है वो अल्फाबेट्स को अपने साउंड्स, डिजायर्ड साउंड के ऊपर आप रख दें, ठीक है। देन फोनोग्राम कार्ड्स एंड बुक्स, ठीक है। फोनोग्राम्स में आपका जो है वो डायग्राफ्स आपके सारे आ जाती हैं, उनकी कार्ड्स और बुक्स होनी चाहिए कि इन डायग्राफ्स के साथ कौन कौन से वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स की मैचिंग है। ये डायग्राफ्स आपने सिंगल मतलब एक बॉक्स पे डायग्राफ होना चाहिए और बाकी आपके जो अदर लेटर्स हैं वो आपके आपके पास वैसे ही सिंगल लेटर्स हैं, वहां से आप इनको कॉपी पेस्ट कर मतलब इनको अरेंज करवा सकती हैं बच्चों के साथ, ठीक है। एटलीस्ट 3 to 4 पिक्चर आपके पास हर फोनोग्राम में होनी चाहिए। ऑलराइट, सो ये 4 एक्टिविटीज हो गई। अब ये आप इनिशियल जो जो आपका लेवल होगा ना उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बच्चे को डिफरेंशिएट कर सकती हैं एक्टिविटीज में, एक टाइम पे एक एक्टिविटी और दूसरे टाइम पे दूसरी एक्टिविटी रख के, और एक टेबल पे एक एक्टिविटी और दूसरे टेबल पे दूसरी और तीसरे टेबल पे तीसरी एक्टिविटी, और बच्चे शफल भी कर सकते हैं आप उस तरह से, ठीक है। जब आपने एक एक्टिविटी बेसिक एक्टिविटी करा ली तो आप अपने बच्चों को शफल भी कर सकती है कि आप ये टेबल दूसरे टेबल पे जाके वो एक्टिविटी करें और दूसरा टेबल आपके पास आके राइटिंग कर ले या कोई और काम कर ले, ठीक है। स्पेशली दीज एक्टिविटीज आर गुड फॉर राइटिंग टाइम ऑल्सो। मेक श्योर कि आपका क्लास का कोई भी बच्चा आइडल ना बैठा हो, बस फारिग ना बैठा हो। Even when you are writing on the board, keep on discussing something, keep on talking about something. Do indulge them with yourself.
ठीक है। अदरवाइज व्हेन यू आर टुवर्ड्स द बोर्ड, यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू आर डूइंग समथिंग ऑन द बोर्ड, आपके बच्चे बिल्कुल आइडल होती है, अनअटेंडेड होती है, वो कुछ ना कुछ पीछे कर रहे होते हैं। तो डोंट मेक देम सिट आइडल। Even you are towards the board writing something or preparing the board, still do talk to them. Keep on talking to them. Keep calling their names. मतलब रेंडमली आप बच्चे का नेम लें, टारगेटिंग क्वेश्चन करें, टारगेट करके बच्चे का नाम लें और उससे सवाल करें, अच्छा हाउ वाज योर डे यस्टरडे, तो बच्चे को पता हो कि टीचर इज इंडल्ज विद मी। ठीक है ना। डोंट मेक देम सिट आइडल। लैंग्वेज ऑब्जेक्ट्स, अगेन ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने जो है वो लैंग्वेज और सॉरी जो साउंड्स हैं उनको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों ने मैच करना है और उनको जो है वो उसके साथ ही उनके सेट्स बनाने हैं और बच्चे जो है वो उन साउंड्स को पिक्चर्स के साथ मैच करें। पहली चीज, अगर आपके पास वो नहीं है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो कि यू कैन यूज पिक्चर ऑल्सो। Three-part cards. अच्छा, three-part cards are basically used in geography and in other botany and all these in Montessori ना। लेकिन आप थ्री पार्ट कार्ड्स को अपनी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि एक पिक्चर पे आप एक कार्ड पे आपके पास पिक्चर और उसका वर्ड होता है और दूसरी तरफ आपके पास एक सिंगल पिक्चर होती है और सिंगल वर्ड होता है। ठीक है। पिक्चर अलग होती है, वर्ड अलग होते हैं। तो बच्चा जो है, आइदर यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद सो मेनी थिंग्स, आप उसको सिंगल पिक्चर और सिंगल वर्ड दे और वो कार्ड ढूंढ के आपको उसके साथ मैच करके दे, या अगर आप उसको कार्ड दें और वो पिक्चर और उसका वर्ड जो है वो उसके साथ प्लेस करें। तो ये आप डिफरेंट तरीके से एक्टिविटीज जो है, दो तीन तरीके से इस एक्टिविटीज को करा सकते हैं बच्चे के साथ। ठीक है। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देन फोनिक्स रीडिंग, हाउ टू डू फोनेटिक रीडिंग। ठीक है। फोनेटिक रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट जो चीज होती है वो दो दो तीन तीन करके वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करना। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप साइट वर्ड्स करा देती हैं और उसके साथ आप सीवीसी वर्ड्स कराते हैं तो बच्चे के लिए रीडिंग करना बिकम सो इजी। जैसे इसी में आप देख लें कि इनिशियली उन्होंने बच्चे को जो साइट वर्ड्स कराए वो आई और सी था। ठीक है। उसके बाद आई सी अ फैट। ठीक है। ये सीवीसी वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया। इसी तरह से उसको आप इंक्रीज करते जाएं, आई सी अ फैट रैट ऑन। अब इसमें क्या चीज हो रही है कि बच्चा जब इस रीडिंग कार्ड को पढ़ रहा है तो उसके पास रिपीटिशन बार बार आ रही है। फर्स्ट ही इज रीजिंग आई सी, देन आई सी अ फैट, आई सी अ फैट रैट ऑन, आई सी अ फैट रैट ऑन अ मैट, आई सी अ फैट रैट ऑन अ मैट बाय द, आई सी अ फैट रैट ऑन अ मैट बाय द कैट। ठीक है। और एंड पे वो सेंटेंस जो है वो लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये छोटे छोटे कार्ड्स जो है ना, आप अगेन मैं वही कहूंगी कि प्रिंट करके लेमिनेट कर सकते हैं। कलर पिक्चर्स होना जरूरी नहीं है और सिंपल पिक्चर्स भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक पेज पे आप ये 6 कार्ड्स भी बना सकते हैं, एक A4 साइज के पेज पे, ज्यादा बड़ा कार्ड नहीं होना चाहिए। 4 कार्ड्स बना लें, 2 कार्ड्स बना लें, 6 कार्ड्स बना लें और ये छोटे छोटे कार्ड्स आप अपने बच्चों को दे सकते हैं फ्री टाइम में। व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग विद लेटर्स विद वर्ड्स, तो ये इजीली जो है उसकी रीडिंग करते हुए इस चीज को कर सकती हैं। ठीक है ना। और रिपीटिशन इसमें बार बार आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा जो फोनिक्स का पैटर्न है उसका बेसिक पर्पस होता है रिपीटिशन। जब हम 3 लेटर्स करा लेते हैं SAT, हम 4th लेटर पे जाते हैं तो हम खाली 4th लेटर नहीं कराते, हम SATP कराते हैं। फिर जब हम 5th लेटर पे जाते हैं I पे तो हम SATPI कराते हैं। ठीक है। प्रीवियस लेटर्स भी जो है वो रिवाइज होती हैं साथ साथ। मेजर लेटर उस डे का वो लेटर होता है करंट लेटर, और बाकी प्रीवियस लेटर भी आपके साइट वर्ड्स के थ्रू, आपके CVC वर्ड्स के थ्रू डेली उनकी भी साउंड रिवीजन जो है वो होती जाती है और उसके साथ हम उनको वर्ड्स भी सिखा देते हैं। नाउ ट्रेसिंग बोर्ड्स एंड वर्कशीट्स, सिंपल अगेन आप इनको ट्रेसिंग पैटर्न की वर्कशीट्स भी दे सकती हैं और बोर्ड्स भी बना सकती हैं। बोर्ड्स वही जो मैंने तरीका आपको बताया, इन्हीं को प्रिंट आउट करके आप लेमिनेट कराएं और बच्चे को मार्कर्स दें और वो उसको यूज करें। फ्री टाइम पे बच्चा ये एक्टिविटी भी कर सकता है। फ्री टाइम तो नहीं, मतलब जब आप बच्चे दूसरे बच्चों को काम करा रहे हैं तो आपका कोई भी बच्चा आइडल नहीं रहना चाहिए। ये छोटे छोटे पेजेस आप अपने बच्चों को दें, मार्कर्स के साथ उनको काम करने का, और डस्टर के साथ वैसे ही बहुत इंटरेस्ट होता है तो वो इस चीज को बहुत इंटरेस्ट लेके काम करेंगे कि हमारे पास बोर्ड मार्कर भी है और हमारे पास डस्टर भी है, हमने अपना काम खुद करना है, टेढ़ा करें सीधा करें जैसे भी करें, लेकिन वो इस चीज को करेंगे और बहुत ही एक्टिवली करेंगे और एंजॉय करके करेंगे। देन वी आर हैविंग साउंड गेम्स। ये डिफरेंट साउंड गेम्स हैं जो कि आप खुद बना सकती हैं। उनमें से जो मेरी फेवरेट साउंड गेम है वो सीक्रेट सेंटेंस है।
secret word, secret sentence. This is the bestest activity. And personally, I'm telling you, okay, my kids, and when I introduced this activity in my phonics plan, every child loved it. We are having, mashallah, say 390 kids in KG2. I don't think so कि किसी टीचर ने मुझे ये कहा हो कि मैम ये एक्टिविटी हम नहीं करवा सके. All the teachers loved their activity or love this activity in their classroom. Secret word or secret sentence, so crack the code. We name it crack the code. हमने उन बच्चों को उसका नाम दिया था कि यू आर गोइंग टू क्रैक द कोड. नीचे इमेजेस थी, उन्होंने उनके बिगिनिंग साउंड्स लिखने थे और बिगिनिंग साउंड से उन्होंने वर्ड डिफाइन करना था. दैट वाज क्रैक द कोड. ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. दिस वन, सीक्रेट सेंटेंस, सीक्रेट वर्ड और क्रैक द कोड. ठीक है, देन बिंगो यू कैन मेक. ठीक है, बिंगो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. बिंगो में भी बच्चे 2-3 ग्रुप्स का बना लें और वो उनके साथ खेलें, या आप बिंगो के कार्ड सारी क्लास को भी दे सकते हैं और जिसका बिंगो पहले कंप्लीट हो गया, ही इज द विनर. बिंगो इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग गेम. आपने बच्चे को ये साउंड कार्ड्स दे दिए, उसके ऊपर डिफरेंट साउंड्स बने हुए हैं और आपने बच्चे को बताया लेट्स फाइंड आउट एनी वर्ड, एनी पिक्चर विद साउंड साउंड. जो बच्चा सबसे पहले क्रॉस कर देगा और जिसका बिंगो सबसे पहले कंप्लीट, इसी तरह सारे साउंड्स आपने बताने हैं. नंबर्स के साथ भी आप ये गेम्स खेल सकते हैं, हरूफ तहज्जी के साथ भी खेल सकती हैं. बिंगो इज द बेस्ट गेम फॉर प्री स्कूल. बेस्ट गेम. इसमें आप वर्ड्स दे सकते हैं, इसमें आप सेंटेंसेस, इसमें आप पिक्चर्स दे सकती हैं. आप बच्चे के साथ बिंगो खेले, बहुत इंटरेस्टिंगली बच्चा खेलते हैं. और क्योंकि आप बोल रहे होते हैं यू आर द वर्बल स्पीकर एंड ही इज एक्चुअली लुकिंग एंड फाइंडिंग आउट द थिंग्स, उसको उस चीज में बहुत इंजॉय करते हैं और वो खुद से जो है ना, उसकी ये सारी एफर्ट खुद की होती है बिंगो में. जी बेटा, ममा आ रही है. ठीक है, तो आपने बिंगो को भी जो है वो अपनी क्लास में उसके छोटे छोटे कार्ड्स बना के रख लें और बिंगो भी आप अपने बच्चों को करा सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये तो पुराना स्टाइल हो गया है, ये भी एक्टिविटीज आप वोवल वर्ड्स के साथ करा सकती हैं. देन दीज आर डिफरेंट एक्टिविटीज. आप जब उनको डायग्राफ्स करवाएं या ट्राईग्राफ्स करवाएं तो आप डायग्राफ और ट्राईग्राफ की पिक्चर्स जो है वो कट करके रख लें और इस तरह के बॉक्सेस बना लें और बच्चे को ये एक्टिविटीज दे सकती हैं कि श के वर्ड्स च बॉक्स में डालें, छ के च में, थ के थ में, व के फ में. ठीक है, तो बच्चे इन एक्टिविटीज को बहुत इंटरेस्टिंगली करते हैं. आप पिक्चर्स भी दे सकते हैं, आप वर्ड्स भी दे सकते हैं. अगर उनको पिक्चर रीडिंग आती है तो पिक्चर दें, वर्ड रीडिंग आती है तो वर्ड दे दें. ठीक है, सिंपल एक्टिविटीज. देन दिस इज द एक्टिविटी फॉर वेरी इनिशियल बेस विद पेग्स. ठीक है, छोटे छोटे कार्ड्स आप बना लें, उनमें 3 to 4 डिफरेंट वर्ड, 3 लेटर्स डिफरेंट लिखी हुई हो और आपने बच्चे से पूछना है कि विच इज द लेटर बिलोंग्स टू दिस पिक्चर, विच इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ दिस पिक्चर. तो बच्चा पेग की मदद से उस जगह पर, उस साउंड पर वो पेग पेस्ट करेगा. ठीक है, तो इसमें उसकी हैंड ग्रिप एक्सरसाइज भी आ रही है, साउंड लर्निंग भी आ गई है और पेगिंग भी इसमें आ जाएगी. ठीक है, और उसकी आई है एंड हैंड कोऑर्डिनेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगी. सो दिस एक्टिविटी इज आल्सो वेरी नाइस फॉर वेरी अर्ली लर्नर्स. ठीक है, then you can do activities with large movable alphabets and writing practices. ठीक है, तो आप उनको लार्ज मूवेबल अल्फाबेट्स भी इसी तरीके से दे सकते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज. अगेन इफ यू आर नॉट हैविंग मूवेबल अल्फाबेट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यू कैन मेक योर ओन अल्फाबेट. ठीक है, आप अपने खुद के भी अल्फाबेट्स बना सकती हैं. ठीक है, now writing materials, then you can come to the writing materials and you can use writing practice with the children on pages also. मैंने आपको, I told you earlier also that if you are not writing practices on page books, before books give them boxes or do writing over there and then come to the books, ताकि बच्चा जब बुक पे राइटिंग करे तो उसकी राइटिंग बहुत नीट एंड क्लियर होनी चाहिए. Okay, and these are all your differentiated activities also. यही सारी एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व करके डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज में भी, दिस इज बेसिकली डिफरेंशिएटेड एक्टिविटीज. उसमें आप गेम प्लेइंग के साथ कर लें. जब बिंगो है इट्स अ गेम प्ले, क्रैक द कोड इट्स अ गेम. ठीक है, ये सारी गेम्स आपकी आ जाती हैं. पैगिंग इज ऑल्सो अ गेम. गॉट इट? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज? बाय ऊपर चली गई.
G class, any question related to these? No, ma'am. All clear? All the activities are clear? ये crack the code की activity किसी को clear हुई है? Bingo की activity? Any question, class?